So in the previous lecture, right, we will come like we talked about the type 3 questions. Just we have started the discussion type 3 questions in which they do not give you opening balance sheet and we have to prepare opening balance sheet. Okay? We have to prepare opening balance sheet. So how to prepare opening balance sheet? Basically, they will give you some information about the opening balance sheet. They will give information about the balances at the beginning of the year. And from the recent payment account, we can also take some of the items of the opening balance sheet. Like on receipt side, there is an opening balance of cash and bank, right? That opening balance belongs to opening balance sheet. Then, right, there are some receipts which belongs to the previous year. Some receipts which belong to the previous year. Those receipts which are received in the current year but belongs to the previous year are receivable at the beginning. They are receivable at the beginning. So they will be on your asset side. They will be on your asset side of the opening balance sheet as a receivable or outstanding. On the payment side, there can be some items related to previous year. Means you have paid during the year, but the payment belongs to previous year. Means it was payable in the previous year. So that on the liability side. So they will give you information about opening balance sheet. They will give you information like they will give you balances, recent payment, right? From that we will prepare opening balance sheet. Is it mandatory to prepare opening balance sheet? It is not mandatory, but it is advisable to prepare opening balance sheet because right, that will give you control over your question. So we will convert question number 3 into question number 2. Right? We will convert type 3 into type 2. टाइप 3 टू टाइप 2 मींस टाइप 1 क्वेश्चंस जो हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे. टाइप 1, इफ यू रिमेंबर, they were the questions, right? They were the questions where right, they were the questions where it was the first year of the NPO. It was the first year of NPO. So there is no question of the opening balance sheet. Right? Opening balance sheet was not required with the recent payment account and adjustments. We prepared income and expenditure and closing balance sheet. There were other types of questions जिसमें, right, it is not the first year of the NPO, means subsequent years of NPO, second year, maybe third year, or maybe any other year, but not the first year. And in such questions opening balance sheet is applicable. उसमें type 2 questions and type 3 questions. Type 2 questions में opening balance sheet is given, right? In the type 2 questions opening balance sheet is given. जो हम इतने दिनों से कर रहे हैं, we were doing or we are practicing type 2 questions. They have given opening balance sheet, they have given a recent payment account, they have given adjustments, and we have to prepare income and expenditure and closing balance sheet. तब हमने बोला whatever is a tallied information like opening balance sheet and recent payment, they have been tallied. आपके टेक्स्ट बुक में, आपके क्वेश्चन में वो tallied information है, right? So they have one unique effect and adjustment has two effects. The type 3 questions, opening balance sheet is not given in the question, right? They are difficult questions. Okay? And in that case, try to understand. First prepare opening balance sheet. Working note में हम opening balance sheet करेंगे and then type 3 questions will get converted into type 2. Question में recent payment दिया है, adjustments दिए हैं, and working note में यह opening balance sheet. समझ में आ रहा है? And with that we will prepare, right, income and expenditure and closing balance sheet. ठीक है? So let's start. Now I will take some simple questions. I will take some simple questions before we actually, right, start solving difficult one. Okay. सिक्सटीन हुआ, 17 हुआ था, 18, 19 हुआ है,
Okay, opening balance sheet is not given. ठीक है, try to understand. Question number 20. From the following recent payment account and the adjustments given below, you are required to prepare income and expenditure account for their ending 31st March 2011. For their ending 31st March 11 of the Senior Citizens Association Pune. Senior Citizens Association Pune. They have given you recent payment account for their ending 31st March 2011. They are not given you opening balance sheet. Receipt side देखो, two balance brought down. These are opening balance. So they belong to the previous year. वो opening asset में रहेंगे 9,100 and 16,400. Opening asset में रहेंगे. Subscription, your current year is 10-11 is your current year. 10-11 is your current year. So this is previous year. This is current year. This is next year. So this will be also your opening balance sheet. You are received 6,000 for the previous year. तो previous year में वो receivable देखेगा, minimum 6,000 देखेगा. Opening asset में minimum 6,000 रहेगा. 6,000 से ज्यादा भी हो सकता है, 6,000 से कम नहीं रहेगा. 6,000 से कम नहीं रहेगा. Try to understand. Minimum 6,000 रहेगा, minimum. Next, आगे, ठीक है. Then क्लियर है, करंट ईयर इनकम में जाएगा, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में जाएगा, डोनेशन जनरल है मतलब इनकम में आएगा. एंट्रेंस फीस आर देखना पड़ेगा क्या लिखा है. 50% ऑफ द एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, मतलब 50% इनकम 50% कैपिटल. 5,000 इनकम 5,000 कैपिटल. सेल प्रोसीड्स ऑफ द फर्नीचर, बुक वैल्यू इज 7,800. book value is 7,800, right? 7,800 का furniture you are sold for 6,500 at a loss of 1,300. अगर आपने इस साल में फर्नीचर सेल किया है तो ऑब्वियसली आपके पास फर्नीचर होगा, इसलिए सेल किया होगा. इस साल में अगर आपने फर्नीचर सेल किया है तो होगा इसलिए सेल किया है. या तो पहले से होगा, मतलब लास्ट ईयर में फर्नीचर रहेगा और इस साल में सेल हो गया, या इसी साल में परचेस किया और इसी साल में सेल हो गया. अगर इसी साल में परचेस किया होगा तो पेमेंट साइड पे फर्नीचर दिखना चाहिए, बट पेमेंट साइड पे कहां पे भी फर्नीचर नहीं. पेमेंट साइड पे कहां पे भी फर्नीचर नहीं, मतलब ये इस साल का नहीं है, मतलब इसी साल में परचेस किया और इसी साल में सेल किया, ऐसे नहीं है. तो दिस फर्नीचर मस्ट बी इन योर ओपनिंग बैलेंस शीट. आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में कम से कम 7,800 का फर्नीचर होना चाहिए. ओपनिंग बैलेंस शीट में कम से कम 7,800 का फर्नीचर होना चाहिए. फर्नीचर होगा तो ही आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट सेल. फर्नीचर होगा तो ही आप सेल कर सकते हो. नेक्स्ट, टू पिकनिक रिसिट्स. पिकनिक रिसिट्स 15,000. देन देयर आर पिकनिक एक्सपेंसेस 11,500. वी विल शो नेट अमाउंट प्रेजेंटेशन के लिए. पिकनिक रिसिट्स आर मोर देन पिकनिक पेमेंट्स, इज देयर इज अ प्रॉफिट ऑन द पिकनिक. इनकम साइड पे लिखेंगे पिकनिक receipts less picnic expenses. Interest on FD, you have received interest, ठीक है. there is a FD, you have purchased FD, so no problem. These are salary, you have paid for the previous year, you have paid for the current year, you have paid for the next year. On a payment side there is a salary of 500 which belongs to previous year. लास्ट ईयर में वो पेएबल है इसलिए इस साल में पेड हुई है. सो दिस इज ओपनिंग की सैलरी है. ओपनिंग में लायबिलिटी होगी मिनिमम 500. ओपनिंग बैलेंस शीट मिनिमम होगी, उससे ज्यादा चलेगा बट उससे कम नहीं चलेगा. लायबिलिटी में मिनिमम 500 सैलरी पेएबल होगी, मिनिमम बोल रहा हूं. करंट ईयर का जो होता है सैलरी वो एक्सपेंस रहेगा. नेक्स्ट ईयर की सैलरी आपने इस साल में पेड की है, इट इज असेट, क्लोजिंग असेट में जाएगा प्रीपेड बोल के. FD is asset, right? Printing and stationery expense, general expense, traveling expenses are expenses, ठीक है. Traveling expenses are expenses. Then अच्छा 19 also previous year, okay. 19 is also previous year, okay, no issues.
सो ये करंट ईयर है क्या, ठीक है, करंट ईयर इज 10-11, अच्छा बराबर, 10-11 इज करंट ईयर. सो इवन दिस इज ओपनिंग 500 plus 8,000 belongs to the previous years. So opening बैलेंस शीट में मिनिमम होना चाहिए सैलरी पेएबल लाइबिलिटी में 8,500, तब पेएबल थी इसलिए इस साल में पेड हुआ है. आगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस, मेडिकल चेकअप फीस, ओके नो इश्यूज, एक्सपेंस है. पिकनिक एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एंड सब पेमेंट होने के बाद दीज आर क्लोजिंग बैलेंस शीट आइटम्स, दीज आर क्लोजिंग बैलेंसेस. ऑफिस रेंट इंक्लूड्स, ऑफिस रेंट इंक्लूड्स किधर है वो, ऑफिस रेंट इंक्लूड्स 5,000 इंक्लूड्स रुपीज 500 पेड फॉर 910, 910 के लिए मतलब प्रीवियस ईयर रुपीज 500 एंड 1,000 फॉर 11-12 नेक्स्ट ईयर, 11-12 नेक्स्ट ईयर 1,000, मतलब आउट ऑफ 5,000 500 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1,000 इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर. तो करंट ईयर का कितना है 10-11, करंट ईयर का 3,500, कितना है 3,500. यू हैव टू बाइफरकेट. आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट फॉर द करंट ईयर, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,500 है, एड इन एक्सपेंस, एड इन लायबिलिटी. सो जो पेड हुआ है, जैसे जो रिसीव्ड है वो इनकम नहीं, उसमें से जो करंट ईयर की वो इनकम, राइट. जैसे यहाँ पे योर इनकम इज 90,000, not 1,03,500. Your income is of the current year. You received 1,03,500. उसमें से जो करंट ईयर का है वो इनकम है. सिमिलरली योर ऑफिस रेंट एक्सपेंस इज 3,500. ऑफिस रेंट एक्सपेंस इज 3,500. इस ईयर का जो है ना वो एक्सपेंस होगा. सो 3 आउट ऑफ 5,000 500 इज द प्रीवियस ईयर, 1,000 इज ऑफ द नेक्स्ट ईयर. करंट ईयर का 3,500 जो करंट ईयर का होगा वो एक्सपेंस होगा. सो पेमेंट इज डिफरेंट, एक्सपेंस इज डिफरेंट. जैसे जैसे रिसीट्स वर्सेस इनकम इज डिफरेंट. रिसीट इज 1,03,500 बट उसमें से इनकम इज जस्ट 90. इस ईयर के इनकम में 90 आएगा. सिमिलरली पेमेंट वर्सेस एक्सपेंडिचर, पेमेंट इज 5,000, उसमें से एक्सपेंडिचर इज जस्ट 3,500. पेमेंट इज 5,000, उसमें से एक्सपेंडिचर इज 3,500. सो पेमेंट इज डिफरेंट, एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट. उस पेमेंट में से इस ईयर में जो पेमेंट हुआ है उसमें से जो करंट ईयर का है वो एक्सपेंस होगा. जैसे इनकम ढूंढते हैं सिमिलरली एक्सपेंस भी ढूंढा जाता है, कुछ अलग नहीं. नेक्स्ट, ओके 50% इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज करनी है. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 10,000. इस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 है. एड इन इनकम, एड इन एसेट. द बिल फॉर राइट पेपर एंड periodicals रुपीज 7,150 इज आउटस्टैंडिंग. 7,150 का बिल आउटस्टैंडिंग है. एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी. सो हैव दे गिवन यू ओपनिंग कैपिटल? नो. किधर से कैपिटल फंड आओगे? अगर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट करनी है तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड होना चाहिए. यू डोंट हैव ओपनिंग कैपिटल. अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा. सो कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द ओपनिंग कैपिटल विद द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट, ट्राई इट, राइट. सो आप मुझे बोलो कि कितना कैपिटल होगा. टेक 2 minutes एंड ट्राई टू फाइंड आउट द कैपिटल. Go for it. Try to find out the capital. Make it fast.
ओके, ओपनिंग कैपिटल कितना होगा मैं पूछ रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल फंड कितना होगा? बिगिनिंग में ओपनिंग कैपिटल कितना होगा? ठीक, सबका रॉन्ग है अभी तक, एवरीवन इज रॉन्ग। ओके, नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है, ठीक है ठीक है। हाँ, दिया है बराबर, बहुत लोगों ने बराबर दिया, ठीक है। मैं टोटल देख रहा था बैलेंस शीट की, कैपिटल पूछा है ना मैंने। हाँ, परफेक्ट है बहुत लोगों का। आई थिंक 30,300 इज द आंसर, 30,300, 30,300 शुड बी द आंसर। चलो लेट्स सी। सो जो जो ओपनिंग है वो लिखो। ओपनिंग असेट में मतलब वो सॉरी, रिसीट साइड पे जो प्रीवियस ईयर का है वो ओपनिंग असेट में रहेगा। पेमेंट साइड पे जो प्रीवियस ईयर का है वो ओपनिंग पेएबल रहेगा, जो इस साल में पेड हुआ है। इस ईयर के रिसीट साइड पे जो रहेगा ओपनिंग का, वो रिसीवेबल रहेगा एट द बिगिनिंग, जो रिसीवेबल था रिसीव्ड हुआ है। एंड इस ईयर के पेमेंट साइड पे जो ओपनिंग का रहेगा वो लायबिलिटी में रहेगा, पेएबल था इसलिए पेड हुआ है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नीचे कोई ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में कुछ लिखा है क्या? नहीं सर। चलो, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, 30 नहीं नहीं, 30,500 नहीं है, 30,300 है। ठीक है, लेट्स सी। पहले राइट लिखो, सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 31 मार्च 2011 या क्या 2011?
ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देन बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड वर्किंग नोट करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट. If you don't have capital, how can you prepare closing balance sheet? Therefore, we require opening balance sheet. Balance sheet as on. Balance sheet as on 31st March 2011. 31st March 2011. Closing balance sheet है liability and assets. अब लिखेंगे वर्किंग नोट, ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2010. फर्स्ट अप्रैल 2010. ठीक है, लेट्स सी. 1st April 2010. ठीक है, assets and liabilities. Sorry, liabilities and assets. So let's prepare opening balance sheet. ठीक है, क्या वर्किंग नोट ही करनी है, इतना क्लियरली नहीं लिखा तो भी चलेगा. ठीक है, लिखते हैं. अच्छा, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस है 9,100, 16,400. सॉरी, इधर लिखना चाहिए कैश एंड बैंक. ओपनिंग कैश इज 9,100, ओपनिंग बैंक 16,400. 9,100, 16,400. 1st अप्रैल के बैलेंस ढूंढने, ओपनिंग के बैलेंस ढूंढने. ठीक है, अपोजिट साइड लिखो. रिसिट पे जो ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का, वो असेट में लिखो, ओपनिंग असेट में. सब्सक्रिप्शन में से 6,000 इज ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो तब दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000. लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000, मिनिमम 6,000 दिखेगा. 6,000. 9-10 का, कौन से ईयर का? 9-10 का. 6,000 मिनिमम कितना दिखेगा? 6,000. देन आगे फिर देयर इज अ सेल ऑफ फर्नीचर. अगर आपके पास फर्नीचर ही नहीं होता तो सेल कहां से करोगे? मतलब एक क्लिक होना चाहिए, राइट? फर्नीचर हमारे पास होगा और कितने का रहेगा? बुक वैल्यू का रहेगा 7,800. बच्चे फर्नीचर लेना भूल जाते हैं, उनका आंसर टैली नहीं होता फिर. 7,800. देन अच्छा, रिसीट साइड पे तीन चीजें मिले. एक ओपनिंग बैलेंसेस मिले, सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का मिला, एंड फर्नीचर सेल हुआ है साल भर में. दैट इज अ हिंट कि पहले हमारे पास फर्नीचर होगा मिनिमम 7,800 का. ठीक है, अब पेमेंट साइड पे देखो, कुछ प्रीवियस ईयर का दो चीजें पे प्रीवियस ईयर की है. एक है सैलरी जो इस साल में पेड हुई प्रीवियस ईयर की. सो ओपनिंग में रहेगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 एंड 8,500. लिखो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 एंड 8,000. आई थिंक, लेट मी स्टिल कंफर्म. 500 तो पता है मुझे, एंड 8,000. 8, 9, 9, 10. 8, 9, 9, 10.
इवन रेंट में भी, रेंट कितने का देखो, रेंट पेड इज 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से प्रीवियस ईयर का कितना, 19 इज द प्रीवियस ईयर 500, तो वो इस साल में पेड हुआ है लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर में वो पेएबल बोल के रहेगा ना, आउटस्टैंडिंग रेंट। $19,500. So asset total is 200, 300, 1 carried, right? 1,300, 1 carried, 10, 10 plus 16, 26, 26 plus 6, 32, 32 plus 12, 39, 39,300 asset minus liabilities is capital fund. सिंगल एंट्री में हम कैपिटल ढूंढते थे, इफ यू रिमेंबर इन योर 11th, 39,300 से 9,000 माइनस करना है, 30,300 इज कैपिटल फंड, 30,300 इज कैपिटल फंड। समझा? किसी को डाउट है यहां तक? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज द हैंड बिफोर वी मूव अहेड। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज द हैंड। अच्छा, आज कितने नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? आई कैन सी जनरली जितनी अटेंडेंस होती है उससे 3-4 लोग ज्यादा है आज। So it means there are some students who are not attending lectures regularly. ऐसे कौन है? Raise the hand. उसमें क्या शर्माना है? I can even trace the attendance. मुझे प्रॉब्लम नहीं attendance trace करने में. But honestly, raise your hand. बोलो, raise hand, उधर ऑप्शन होगा, मुझे पता तो चले कौन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, क्या है। Raise hand, please raise. Who is irregular? Who is irregular? Raise the hand. उसमें शर्माना क्या है? अगर आप लेक्चर रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हो मतलब इट इज अ प्राइड, इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड। और उसमें हाथ ऊपर करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, एक आधा लेक्चर आदित्य, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन लेक्चर, आई एम टॉकिंग नॉर्मली। एक आई नो कि कितने बच्चे ओवरऑल प्रेजेंट रहते हैं एंड जनरली मैं देखता भी हूँ। सो जो आज अटेंड कर रहा है मतलब देयर मच रेट नॉट अटेंड द लेक्चर इज अ प्राउड, तो यू कैन रेज द हैंड। शर्मना क्या है उसमें? इफ यू आर नॉट रेगुलर मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट विच आर, बाकी सब डैश डैश बैठे इधर हम लोग सब, बराबर ना? तुम लोग कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, बाकी सब अपनी कटवा रहे इधर। बी सिंसियर एंड बी रेगुलर। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है? ओपनिंग बैलेंस शीट बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, रिसीव्ड पेमेंट है, नाउ क्वेश्चन इज बिकम नॉर्मल, दिस विल नॉट कम इन द आंसर बिकॉज ये कहां पे कट हो जाएगा? रिसीव्ड पेमेंट पे। तो ये कट हो गया, देखो रिसीव्ड पेमेंट पे कट हो गया, 9,100 9,100, बराबर। उसके बाद 16,400 16,400 हो गया कट, यस। आगे देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा, रिसीवेबल है, रिसीव्ड है, कैंसिल। उसके बाद राइट, फर्नीचर सेल हुआ है वो भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है? अच्छा, सैलरी 500 पेएबल, 500 पेड, कैंसिल। देन 8,000 पेएबल, 8,000 पेड, कैंसिल। देन उसके बाद 500 रेंट पेएबल, 500 पेड, कैंसिल। समझा? ऐसा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक से लिखेंगे, जरा प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे, लिखो। कैश बैंक बैलेंस कभी भी आंसर में आएंगे नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक बैलेंस का कोई सवाल ही नहीं। सब्सक्रिप्शन लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है? 9, 10, 6,000 इनर कॉलम, 6,000।
देन फर्नीचर 7,800, फर्नीचर 7,800, देन ठीक है, 4 आइटम्स थे, 2 आइटम्स आ गए। कैपिटल फंड 30,300, इनर कॉलम। ओपनिंग बैलेंस ठीक से लिखो, 50,500, देन आगे, सॉरी 50 नहीं, 30,000, 30,300, देन आउटस्टैंडिंग सैलरी हम माइनस करके दिखाएंगे, ठीक से लिखेंगे, कट ही करना है ना तो ठीक से कट करेंगे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,9 की 500, जो इस साल में पेड हुई है, 0 हो जाएगा। 9,10 का 1,000 है शायद से, 9,10 का 1,000, सॉरी 8,000 है, 8,000, देन वैसे ही रेंट थोड़ी जगह रख के, आउटस्टैंडिंग रेंट 9,10 का 500, 500। So opening balance sheet becomes closing balance except 5 items. Opening balance sheet becomes closing balance sheet except 5 items. Which are those 5? कैश बैंक वो कभी भी क्लोजिंग में नहीं आते। एसेट साइड पे रहता है प्रीपेड एक्सपेंस, अगर है तो वो एक्सपेंस में आके बैठेगा इस ईयर के, और वो लिखेंगे, डोंट वरी। देन फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होगा, इस ईयर के रिसीट पे रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। एंड लायबिलिटी में रहता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्या रहता है? एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो इनकम में आके बैठता है, दे विल गिव यू, ठीक है। सो क्लियर है? अच्छा, अब रिसेंट पेमेंट के इफेक्ट देंगे। वैसे भी टू बैलेंस बट डाउन आने वाला नहीं है। सब्सक्रिप्शन 1,03,500 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव्ड इज डिफरेंट एंड इनकम इज डिफरेंट। हम रिसीट से इनकम ढूंढ रहे हैं, 1,03,500, 1,03,500 is your subscription income. नो नो, इट्स रिसीट, हमें इनकम ढूंढना है। देन हमेशा की तरह 4-5 लाइन रहने दो। डोनेशन जनरल है, जनरल मतलब नॉर्मल रेवेन्यू, बाय डोनेशन 20,000, 20,000 डोनेशन 20,000। देन आगे एंट्रेंस फीस 10,000, 50% इनकम है, 50% कैपिटल है, बाय एंट्रेंस फीस। कितने की एंट्रेंस फीस रिसीव्ड है साल भर में? 10,000। 10,000 में से 50% इनकम है, 5,000, एंड 5,000 कैपिटल है, एड एंट्रेंस फीस। एवरी टैलीड इंफॉर्मेशन हैज वन यूनिक इफेक्ट, एंट्रेंस फीस। 5,000 उधर गया, 5,000 इधर आ गया, 10,000 एक जगह पे गया, यस, 5,000 इनकम में गया, 5,000 कैपिटल में गया, टोटल 10,000 का हिसाब क्लियर हो गया। आगे देन उसके बाद सेल प्रोसेस ऑफ फर्नीचर 7,800 का फर्नीचर यू सोल्ड एट 6,500। व्हाट इज द एंट्री? एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट 6,500 जो यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 6,500 जो यहाँ पे, रिसेंट पेमेंट इज लाइक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 6,500, लॉस अकाउंट डेबिट 1,300, लॉस हुआ है, लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर इज अ लॉस। 2, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, राइट। 7,800 का फर्नीचर you sold at 6,500, so loss of 1,300। कितने का लॉस हो गया? 1,300। कैश अकाउंट डेबिट, यहां पे डेबिट है, यू कैन सी। लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट यहां पे डेबिट है। टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 7,800, कैश अकाउंट डेबिट 6,500, लॉस अकाउंट डेबिट 1,300, टू फर्नीचर गोज आउट क्रेडिट, लेस सोल्ड। यहाँ पे बुक वैल्यू माइनस होगी हमेशा, एसेट से क्या माइनस होगी? बुक वैल्यू। सो फर्नीचर अब कुछ बाकी है क्या? नहीं। 7,800 का फर्नीचर
7,800 का फर्नीचर आई सोल्ड एट 6,500 मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 1,300. कितने का लॉस है? 1,300. लॉस ऑफ 1,300. देन ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद पिकनिक रिसीट्स इनकम साइड पे 15,000. उधर डेबिट इधर क्रिएट कर रहा हूं. बाय पिकनिक रिसीट इनर कॉलम में. जब ऐसे एक ही एक्टिविटी के रिसीट्स एंड पेमेंट होते हैं, ड्रामा रिसीट्स ड्रामा पेमेंट्स, एनुअल गैदरिंग रिसीट्स एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, पिकनिक रिसीट्स पिकनिक पेमेंट, ऐसे सेम काइंड के ट्रांजैक्शंस होते हैं या रिसीट्स एंड पेमेंट होते हैं, हम उसको नेट करके लिखते हैं. ठीक है. 15,000 इनर कॉलम में. बाद में आगे इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,500. इनकम एक दो लाइन रहने देना. इसके बाद interest on FD is 4,500. 4,500. Then this is said done. Yes. Payment side पे salary total paid 66,500 to salary. 65,500. जैसे हम सब्सक्रिप्शन इनकम ढूंढते हैं ना, वैसे सैलरी एक्सपेंस भी ढूंढेंगे. सैलरी पेड है ये पेड. हमें पेमेंट से एक्सपेंडिचर ढूंढना है. पेमेंट से एक्सपेंडिचर ढूंढना है. ठीक है. आगे नेक्स्ट सैलरी पेमेंट. ठीक है. उसके बाद एफडी 50,000 की एफडी परचेस की. ओपनिंग में कुछ नहीं था, साल भर में हमने 50,000 की परचेस की एंड उसी 50,000 पे हमें ये 4,500 का इंटरेस्ट मिला है. उसी 50,000 पे ये इंटरेस्ट मिला है. ये जो 50,000 की असेट है उस पे ही हमें 4,500 का इंटरेस्ट मिला है. नहीं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 13,850. 3-4 लाइन हमेशा सब्सक्रिप्शन में जितनी लाइन रखते हो सैलरी में रख दो. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसको एडजस्टमेंट है. कितने का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 13,850. 13,850. देन जनरल एक्सपेंसेस 1,500. इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिख दो जनरल एक्सपेंसेस 1,500. देन आगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,300. traveling expense are traveling expenses are 12,300. 12,300. Then next उसके बाद ऑडिट फीस 1,350. टू ऑडिट फीस 1,350. 1,350. देन आगे देन सैलरी गलत लिखेगा मैंने. कितनी थी सैलरी? 66,500. अच्छा 65 लिखा गया. 66,500. देन कौन सा हुआ? ऑडिट फीस हुआ. फिर मेडिकल चेकअप फीस 4,050. टू मेडिकल चेकअप फीस 4,050. देन आगे देन पिकनिक एक्सपेंसेस रिसीट से माइनस करेंगे 11,500 लेस एक्सपेंसेस. सो पिकनिक से नेट गेन कितना हुआ आपका? 4,500. कितना नेट गेन हुआ? 4,500 का नेट गेन हुआ. पिकनिक से नेट गेन हुआ 4,500 का. आगे नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट अकाउंट 1,585 टू रिफ्रेशमेंट 1,585. देन आगे ऑफिस रेंट 5,000. उसको भी थोड़ी स्पेस रख दो ठीक से. टू ऑफिस रेंट 5,000.
4-5 लाइन रहने देना जानबूझ के। उसके बाद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, क्लोजिंग है वो, कैश एंड बैंक। कितने के कैश एंड बैंक है? कैश एंड बैंक इज 2365 एंड 15,000, 2365 and 15,000, 2365 and 15,000. There is a power cut, maybe my connection may go, I need to reconnect. Don't go anywhere, I will reconnect. Okay, let me connect. Okay, good. So I think it is connected. Good. Yeah, so we can continue. Okay, I'm audible, right? Just confirm whether I'm audible or no. Yeah, great. So let's start. Continue करते हैं, ठीक है? So yeah, great. So ये आ गया, yes, 2365, 2365 the cash balance, 15,000 is the bank balance, ठीक है? Let's continue. So आगे, हाँ आगे क्या हुआ ठीक से पढ़ो. So अब हमें एडजस्टमेंट करनी है. Adjustment number 1, office rent includes 500 for the previous year, 1,000 for the next year. Outstanding office rent for the current is 2,500, ठीक है? 50% इंटरेस्ट फीस कैपिटलाइज करनी है, ओके, वो कर दी हमने वैसे भी. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 10,000, वो भी हम करेंगे. बिल फॉर पेपर एंड periodicals इज 7150 आउटस्टैंडिंग, एड इन एक्सपेंस. पेपर एंड periodicals, ओ ये प्रिंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग को बाहर लिखो, फिर लिखो 2 पेपर आउटस्टैंडिंग बिल, outstanding paper and periodical bills. Outstanding paper and periodicals bill, ठीक है? Which is, right, outstanding paper and periodical bills, which is uh, according to them is 7150, 7150, 7150, ठीक है? Okay, so ठीक है, then 7150 is your outstanding paper and periodical bill, add in expense, add in liability. Outstanding paper and periodicals bill, कितना? 4150, 4150. Then give me 1 second.
Now I should be audible right now. No, no, मैंने खुद म्यूट किया था. ठीक है, मोबाइल चार्जिंग को लगाया मैंने. ठीक है, एटलीस्ट ये क्वेश्चन होने तक तो सपोर्ट करना चाहिए. सो ध्यान देना. सो इज माई स्क्रीन विजिबल? एक सेकंड, देयर इज सम प्रॉब्लम. एक सेकंड. या सो ध्यान देना. ठीक है, नाउ वीडियो इज क्लियर आई थिंक. हाँ, नाउ इट्स क्लियर. ओके, नो वरी. ठीक है, ध्यान देना. सो या आउटस्टैंडिंग पेपर बिल 4150, एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी. एक्सपेंस में ऐड किया, लाइबिलिटी में ऐड किया. सो एडजस्टमेंट नंबर सेकंड इज डन, एडजस्ट नंबर 4 इज डन. नाउ हमें सब्सक्रिप्शन करेंगे जो हमें अच्छे से आता है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 1,03,500 माइनस दो चीजें माइनस करनी, दो चीजें ऐड करनी है. कौन सी दो चीजें माइनस करनी है? रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. लेस received for previous year, received for next year. Received for previous year, received for next year. You have received for previous year 6,000 and you are received for next year 7,000. So 6,000 minus होगा, 7,500 minus होगा. Then you will get what you received for the current year, which is 90,000. which is 90,000. अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. So out of 1,03,500 करंट ईयर का 90,000 है, विच इज इनकम. सो रिसिट इज नॉट इनकम. रिसिट में से जो करंट ईयर का है वो इनकम होता है. रिसिट इज नॉट इनकम. रिसिट में से जो करंट ईयर का है वो इनकम होता है. ऐड, दो चीजें ऐड होती है, दो चीजें माइनस होती है, दो चीजें ऐड होती है. कौन सी दो चीजें ऐड होती है? एक ऑलरेडी रिसीव्ड, एक होता है ऑलरेडी रिसीव्ड वाला जो कहां पे रहता है? ओपनिंग लायबिलिटी में रहता है. ऑलरेडी रिसीव्ड का ऐड होता है. ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर वाला ऐड होता है क्या कुछ ओपनिंग लायबिलिटी में? रिसीव्ड इन एडवांस? नो. सो बट मैं लिख के रखूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर. अगर होता तो लिख देता, लायबिलिटी से इधर लेके आता. ऑलरेडी रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर, इन प्रीवियस ईयर 0. एंड एक और ऐड होता है आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर. Right? Outstanding for current year, previous year was 910, next year is 1112, current year is 1011. Outstanding for current year, adjustment में लिखा है outstanding for current year is 10,000. Great. Outstanding for current year is 10,000. So add in income, add in asset, add in income, add in asset, add in income, add in asset. इनकम कितनी की होगी? 1,00,000. अब हम इनके सेकंड इफेक्ट देने हैं. 6,000 जो यहां से माइनस हुआ है, रिसीट से माइनस किया टू फाइंड आउट इनकम. 6,000 इज डिडक्टेड फ्रॉम रिसीट टू फाइंड आउट द इनकम. दिस इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिसीवेबल एज वेल. रिसीवेबल था, रिसीव्ड हो गया है, तो माइनस करो रिसीव. 6,000. ठीक है. देन आगे 7,500. 7,500 का क्या करोगे? रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर का है रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर. एनीथिंग रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इज अ लायबिलिटी. रिसीट से माइनस करोगे और कहां पे लेके जाओगे? लायबिलिटी में लेके जाओगे. लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन. आई थिंक ऊपर जगह है मेरे पास. यस, मैं लिख सकता हूं इधर, इतना नीचे लिखने से. एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर विच इज 1112. कितना है वो? दैट इज 7,500. सो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर,
रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर लिख लेना कहां पे, तो रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकंड इफेक्ट, minus from receipt, minus from receipt to find out income, to find out income. रिसीट से माइनस करेंगे इनकम ढूंढने के लिए, राइट. रिसीव्ड फॉर प्रीवियस, सेकंड इफेक्ट माइनस फ्रॉम रिसीवेबल ऑन असेट साइड. असेट साइड पे रिसीवेबल होगा, वहां से माइनस करो. देन रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर, minus from receipt to find out income, minus from receipt to find out income, and second add in, right, liability, right, add in liability, right, liability में add करेंगे. Then outstanding for current year, outstanding for current year, right, add in receipts to find out income. Receipt में add करेंगे, भले ही this money is not received but this money belongs to current year, therefore we will consider, right, as a credit sale. Receivable बोल के हम लेंगे उसको. Add in receipt to find out income, to find out income. Receipt में add करेंगे income ढूंढने के लिए. And second effect, receivable है, add in receivable on the asset side. रिसीवेबल में ऐड करेंगे ऑन असेट साइड. ऐड इन रिसीवेबल ऑन असेट साइड. ठीक है, सो ये पता होना चाहिए. आगे गुड. नेक्स्ट, सो व्हाट इज योर इनकम? 1 लाख इज योर इनकम. ठीक है, सो 6,000 माइनस हो गया, 7,500 लायबिलिटी में गया, राइट. 10,000 असेट में जाएगा. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 11-12, आउटस्टैंडिंग फॉर 10-11, 10,000. एड इन इनकम, एड इन असेट. ठीक है, आगे अब देखते ये वाला. सैलरी पेड टोटल 66,500, उसको इनकम की तरह पेड इज 66,500, उसमें से एक्सपेंडिचर 66,500 नहीं, उसमें से जो करंट ईयर का है वो एक्सपेंडिचर. तो यहां से भी दो चीजें माइनस करेंगे. सैलरी पेड से लेस पेड फॉर, जैसे इनकम निकालते टाइम रिसीट से प्रीवियस ईयर नेक्स्ट ईयर माइनस किया, वैसे एक्सपेंडिचर निकालते टाइम पेमेंट से पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर माइनस करेंगे. पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर तो कुछ नहीं है, मतलब 11-12 का पेमेंट प्रीपेड कुछ नहीं है, प्रीपेड कुछ नहीं है. ओके, एक सेकंड.